ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਕਿਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ 6 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਕ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਮੀਟਿੰਗਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗਸ, ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਕੀम्स, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ, ਡੇਜ਼, ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਔਰ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਹੈ, ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗੈਲੈਕਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਚਾਈਮ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਸਟੇਅਰ 2 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟਰਵੇਜ਼। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਸੁਖ ਲਾਲ ਮੰਡਾਵੀਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ NGT, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NCR ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ। NGT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ 614 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ? ਵਾਰਾਣਸੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ, ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਐਟ ਸਾਰਨਾਥ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੈਕਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਲੈਕਸਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਪਰਲੂਪ ਪਲੈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਟੂ ਪੁਣੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਸ ਵੇਗਸ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ IIT ਖੜਗਪੁਰ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੋਬੜਾ ਚਾਂਤੀ ਬ੍ਰਿਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿਹਰੀ
डिस्ट्रिक्ट दे विच 9 नवंबर ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਨ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆਫ उत्तराखंड ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ उत्तराखंड, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੋਪੈਕਸ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੈਕਸ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਜੀਰਾ ਤੋਂ ਘੋੜਗਾ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਅਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਲੀਫੈਂਟ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੁੱਟੂਰ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਲਵੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਸੋਲਰ ਬੇਸਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਮਲਟੀ ਵਿਲੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਬੇਸਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਮਲਟੀ ਵਿਲੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਅਰ ਦਿਬਾਂਗ ਵੈਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਲਵੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਐਟ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਪਟਿਆਲਾ। NIS ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫਿਸ ਕਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਸ ਦਾ? ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੇਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਟਕ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਲਡ ਫਰਸਟ 6G ਟੈਸਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 6G ਟੈਸਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ 6G ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੋਟਲ 13 ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ 10 ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 10 ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਊਨੋ ਏਅਰਸ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਫਰਸਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ। ਦਰਬੰਗਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਦਰਬੰਗਾ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲਾਵਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨੋਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਵਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ। ਫਰਸਟ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰਸਟ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ? USA। WHO ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ? USA ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 189 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ
इसनूं साइन किया सी। 4th मीटिंग ऑफ इंडिया ओपैक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इस दी चौथी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जिस दे विच इंडिया वालों धर्मेंद्र प्रधान इंडिया के पैट्रोलीਅਮ एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। ओपैक जिहड़ा ग्रुप है बगदाद इराक दे विच बनाया गया सी 1960 दे विच। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली के प्राइम मिनिस्टर सर्जियो मैटारेला इन्हां दोनों ने मिलकर बायलैटरल टॉक्स कीतियां और 15 एग्रीमेंट साइन किए। इटली के नाल इंडिया ने रिसेंटली कितने एग्रीमेंट साइन किए ने 15। इटली कैपिटल रोम है, करंसी यूरो चलती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडियन डेलीगेशन नूं लीड करनगे 20th समिट SCO का हैड ऑफ स्टेट समिट ऑर्गेनाइज किया गया। आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जिहड़ा SCO का हैड ऑफ स्टेट समिट है 2020 का रशिया होस्ट कर रहा है। रशिया ने होस्ट किया, रशिया के प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा, और इंडिया वालों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। सिमिलरली SCO का हैड ऑफ गवर्नमेंट समिट इंडिया होस्ट करेगा। ये ऑर्गेनाइज हजे किया जाना है, इसी मंथ के ऑर्गेनाइज किया जाएगा, याद रखना। फॉरेन सैक्रटरी हर्षवर्धन श्रिंगला इंडिया के फॉरेन सैक्रटरी कौन ने? हर्षवर्धन श्रिंगला ने 2 दिन की विजिट पर गए सी मालदीव्स की। मालदीव्स कैपिटल माले है, करंसी रुपया चलती। इंडिया द्वारा 5th जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई इंडोनेशिया की हैल्प नाल, जिसनूं चेयर किया गया इंडिया वालों एडिशनल सैक्रटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल विनोद कुमार तिवारी। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है, करेंसी रुपया चलती। नेक्स्ट है संजय धोत्रे। संजय धोत्रे जो कि IT मिनिस्टर ने, डिप्टी IT मिनिस्टर कह सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर IT, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और इलैक्ट्रॉनिक्स। इन्होंने 4था एडिशन अनाउंस किया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 ऑर्गेनाइज की जाएगी, वर्चुअल तौर पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और जिसकी थीम है इनकलूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल। इनकलूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल। फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा पहली ब्रिक्स की फाइनैंस मिनिस्टर्स की मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट किया गया। ब्रिक्स कंट्रीज़ की पहली फाइनैंस मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। इंडिया वालों निर्मला सीतारमन द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ब्रिक्स का इस साल के जोड़े समिट ने रशिया होस्ट कर रहा है, नैक्सट ईयर इंडिया होस्ट करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेयर करेंगे 17th इंडिया एशियन समिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 17th इंडिया एशियन समिट को चेयर किया अलॉन्ग विद वियतनाम प्राइम मिनिस्टर न्यूगिन शॉन फुई। वियतनाम कैपिटल हनोई है, करेंसी डोंग चलती है। नेक्स्ट है इवेंट्स की अगर आप गल करते हैं तो हॉट एयर बैलून फैसटिवल। हॉट एयर बैलून फैसटिवल इनोग्रेट किया गया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर द्वारा त्रिवेंद्र सिंह रावत, किथे मसूरी दे विच। इस दे नाल ही मैजिस्टिक उत्तराखंड फोटो एग्जीबिशन एंड हील विद व्हील्स भी ऑर्गेनाइज किए गए। 2 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए, याद रखने। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के बारे पहले तो याद रखना 16 अक्तूबर 1945 ਨੂੰ 75 साल पूरे हुए सी। इंडिया द्वारा भी कमैमोरेटिव कॉइन रिलीज़ किया गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैडकुआटर रोम इटली के विच है, और क्यू डोंगयू इस दे हैड ने। इन्हों द्वारा फूड कोएलिशन इनोग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया फूड कोएलिशन। नेक्स्ट है नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल इस साल वर्चुअली ऑर्गेनाइज करेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागालैंड फेस्टिवल किहड़ी स्टेट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो अगर त्रिपुरा या नागालैंड, त्रिपुरा भी ऑर्गेनाइज कर चुका है नागालैंड फेस्टिवल। अगर ऑप्शन के दोनों के एक स्टेट होएगी तो याद रखना है नागालैंड द्वारा हर साल इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाता है। सैकेंड वर्ल्ड हैल्थ एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है चाइना द्वारा, चाइना के वुहान दे विच। हुनर हाट एग्जीबिशन दिल्ली दे विच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा 11 नवंबर से शुरू किया गया सी, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हुनर हाट एग्जीबिशन। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री मुख्तार अब्बास नकवी दे लवे है, याद रखनी है। राज्य सभा MP ने यह झारखंड तो। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵੀ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। यूपी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यूपी ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜਤਲ ਲੇਕ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ। कुछ रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स डिस्कस करते हैं। सब तो पहले चंदौली डिस्ट्रिक्ट है जोड़ा यूपी का है। चंदौली डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है यूपी के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नीति आयोग की लिस्ट में टॉप किया है यूपी द्वारा। फास्टैग मैंडेटरी किए गए हैं ऑल 4 व्हीलर के लिए फास्टैग मैंडेटरी किए गए हैं जनवरी 1 2021 तो। 15th फाइनेंस कमीशन की गल करते हैं तो चेयरमैन NK सिंह ने इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को सबमिट की। रिपोर्ट का नाम इंपोर्टेंट बनेगा फाइनेंशियल कमीशन इन कोविड टाइम्स। फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। नैक्सट इंपोर्टेंट रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स दे विच ही अजीम प्रेमजी फाउंडर ने विप्रो दे इन्हों द्वारा मोस्ट जनरस इंडिया या कह सकते हैं 7th एडिशन ऑफ हारून इंडिया एंड एदल गिव फिलैंथ्रोपी लिस्ट टॉप किया गया तकरीबन 7904 यानी कि 8000 करोड़ के करीब इन्हों द्वारा की किया गया दान किया गया। दूसरे प्लेस पे शिव नादर HCL दे रहे ने 795 करोड़ के नाल और रिलायंस के मुकेश अंबानी 458 करोड़ के नाल तीसरे नंबर पर रहे ने। केरला द्वारा इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स के टॉप किया गया। दूसरे प्लेस पे गोवा और 3rd नंबर पर राजस्थान रहे। इस इंडेक्स के सब तो लास्ट से किहड़ी स्टेट रही है? दिल्ली रही है। नैक्सट डिस्कस करते हैं कुछ डिफेंस के रिलेटेड न्यूज़ ने कि राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर ने इन्होंने इनोग्रेट किया एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम मॉडल। एक मॉडल लॉन्च किया एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का DRDO हैडकुआटर न्यू दिल्ली दे विच। रशिया और पाकिस्तान मिलकर एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे दजुर्बा एक्सरसाइज किहड़ी दो कंट्रीज़ दे विच ऑर्गेनाइज की जाती है तो रशिया और पाकिस्तान दे विच। एक एक्सरसाइज सागर कवच इंडिया कंडक्ट कर रहा है। सागर कवच इंडिया वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट प्लस इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के नाल मिलकर इसनूं ऑर्गेनाइज किया गया पारादीप पोर्ट उड़ीसा दे विच। इंडियन आर्मी ने 20 फुली ट्रेंड मिलिट्री हॉर्सिस और 10 माइन डिटेक्शन डॉग्स गिफ्ट किए ने बांग्लादेश आर्मी नूं। नैक्सट चलते हैं इंपोर्टेंट स्कीम्स के वल। स्कीम्स के सब तो पहले इस्लामिक पर्सनल लॉज इन्हां दे विच रिलैक्सेशन देने वाली किहड़ी कंट्री बनी है? UAE बनी है। हरियाणा द्वारा 75% रिजर्वेशन की गई है प्राइवेट सैक्टर के। प्राइवेट सैक्टर जॉब्स के लिए 75% रिजर्वेशन किन्ना दे लिए? लोकल्स के लिए जिहड़े कि हरियाणा के रेसीडेंट्स ने। केरला द्वारा फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगियां पुअर फैमिलीज़ और पब्लिक ऑफिसिस दे विच। इस दे लिए केरला द्वारा अनाउंस किया गया। केरला द्वारा ही परिवंथनम प्रोग्राम अनाउंस किया गया फिशिंग कम्यूनिटी की हैल्प दे लिए। अगर आप गल करिए फिशिंग सब तो ज़्यादा किहड़ी स्टेट दे विच हुंदी है तो सब तो ज़्यादा फिश प्रोडक्शन किहड़ी स्टेट का? तमिलनाडु का ये रखना है। दूसरा फिशरमैन के लिए केरला द्वारा की किया गया परिवंथनम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है जी। इंपोर्टेंट स्कीम्स के विच ही पंजाब द्वारा मिशन 100% स्कीम लॉन्च की गई। पक्का टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का है जिहड़ा ये अरुणाचल प्रदेश का या कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पहला ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न बने जिसने की करा इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया ग्रीन सोल्जर्स के लिए। बेसिकली जो फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह होंगे ने उन्होंने लिए कोविड-19 तो बचने के लिए इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया गया पक्का टाइगर रिजर्व द्वारा। स्टैटिक पूछा जाएगा पक्का टाइगर रिजर्व किहड़ी स्टेट दे विच है? अरुणाचल प्रदेश के विच। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने याद रखने। हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉ बनाया गया अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्जन। बेसिकली अगर जबरदस्ती किसी का रिलीजन चेंज करवाया जाता है तो उसके अगेंस्ट लॉ बनाया गया हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा।
उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनैक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा ऑल स्टेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ਦੇ ਲਈ। केरला ने की किया गरीब लोगों के लिए और इन्होंने की कहा कि स्टेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्री वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्मृति ईरानी टैक्सटाइल मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा लोकल फॉर दिवाली कैंपेन लॉन्च किया गया। स्मृति ईरानी टैक्सटाइल मिनिस्टर द्वारा सिमिलर इनिशिएटिव एमपी द्वारा भी लिया गया। एमपी द्वारा भी सिमिलर इनिशिएटिव लिया गया। एक अगर सिमिलर तरीके की इनिशिएटिव की गल करते हैं त्रिपुरा द्वारा भी इनिशिएटिव लिया गया। कल की क्लास के आप उन्होंने डिस्कस करेंगे। उड़ीसा द्वारा सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है फार्मर्स के लिए। उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा ही फिश नूं न्यूट्रीएंट के तौर पर जोड़िया गया आंगनवाड़ी दे विच। आंगनवाड़ी डाइट जिहड़े आंगनवाड़ी स्टूडेंट्स पढ़ते होंदे ने, बच्चे पढ़ते होंदे ने, उन्हां दे लई जिहड़ी डाइट दित्ती जांदी है उन्हां नूं, उस दे विच फिश नूं भी जोड़िया गया उड़ीसा द्वारा। मणिपुर द्वारा अमूर फाल्कन्स बर्ड ने जिहड़े कि माइग्रेटरी बर्ड्स ने साइबेरिया तो तकरीबन साउथ अफ्रीका तक का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ये, जो कि काफ़ी लंबा और लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट है। ठीक है, इस दे विच पूरा का पूरा अरेबियन सी आ जाता है और पूरा का पूरा अरेबियन सी एक कवर करके जाते हैं। अमूर फाल्कन्स साइबेरिया तो चलते हैं। अपने लिए क्यों इंपोर्टेंट बनते हैं? क्योंकि अपने इंडिया के विच मणिपुर और नागालैंड दो ऐसी स्टेट्स ने जिन्हां दे विच ये माइग्रेट करके कुछ टाइम लिए रुकते हैं। तो जिहड़ा मणिपुर और नागालैंड दे विच, तो मणिपुर ने की किया, अमूर फाल्कन्स की प्रोटैक्शन के लिए लॉ पास किए। HDFC बैंक ने स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशंस 3.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया। HDFC बैंक द्वारा प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। 1994 के HDFC बनाया गया सी। मुंबई के हैडकुआटर है और शशिधर जगदीशन इसके हैड ने। पेटीएम द्वारा पे आउट लिंक्स शुरू किया गया ताकि कस्टमर्स एंप्लॉयज़ और वेंडर्स नूं उन्हां दी पे आउट प्रोवाइड करवाई जा सके। सोनी द्वारा एयरपीक ड्रोन लॉन्च करने की गल की गई है। एयरपीक ड्रोन केड़ी कंपनी लॉन्च करेगी? सोनी कंपनी लॉन्च करेगी। नैक्सट चलते हैं इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स दे वल। एग्रीमेंट्स दे विच सब तो पहले गवर्नमेंट द्वारा की किया गया कि जिहड़ी नैटफ्लिक्स हो गए, एमाजोन प्राइम हो गए या फिर जिन्ने भी ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स ने, इन्हां नूं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर रखा गया। रशिया द्वारा एक पीस डील साइन करवाई गई है आर्मेनिया और अजरबैजान दे विच। आर्मेनिया और अजरबैजान दो ऐसी कंट्रीज़ ने जिन्हां दे विच थोड़ी फाइट सी नगोर्मा काराबख एक प्लेस नूं लैके, और इस दे लई आर्मेनिया और अजरबैजान दे विच पीस डील किहड़ी कंट्री ने साइन कराई है? रशिया ने। NSDC द्वारा पार्टनरशिप की गई अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के नाल। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, डेल टेक्नोलॉजीज़ और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के नाल। NSDC की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बनेगी नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच कदों बनाया गया सी? 2008 के विच। इसने प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी के लिए एग्रीमेंट साइन किया ताकि 1 लाख स्टूडेंट्स नूं कैरियर स्किल्स प्रोवाइड किए जा सकन। करनाटका गवर्नमेंट द्वारा टाटा के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के नाल, ताकि 150 ITIs नूं अपग्रेड किया जा सके। व्हाट्सएप द्वारा 5 इंडियन बैंक्स के नाल पार्टनरशिप की गई ताकि की किया जा सके? व्हाट्सएप पेमेंट सर्विसेज नूं लॉन्च किया जा सके। किहड़े 5 इंडियन बैंक सीगे? SBI, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI और जियो पेमेंट बैंक। नैक्सट डिस्कस करते हैं कुछ बुक्स के बारे। इस वीक दे विच आपां काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट बुक्स डिस्कस कीतियां सीगियां। हर एक बुक अपने लैवल ते इंपोर्टेंट बनेगी, किसी न किसी एग्जाम दे विच पूछी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई माझी भिंत, जिसनों लिखा गया उत्थे दे फॉर्मर मिनिस्टर राजेंद्र दादरा द्वारा। सिमिलरली एक बुक लिखी गई है टिल वी विन इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। इस दे लिए एक सिंगल नाम याद रखना है, चंद्रकांत लहारिया,
वैसे 3 ऑथर्स ने, इसके को ऑथर ने गगनदीप कांग और रणदीप गुलेरिया। सिंगल नाम याद रखांगे चंद्रकांत लहारिया। ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि एम्स ਦੇ ਵਿੱਚ डायरैक्टर ने। ससिंद्रन कालिनकील, इन्हों द्वारा एक बुक लिखी गई है रसाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर्स के लिए एक बुक लिखी गई रसाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर। अनुपम खेर द्वारा इन्हों की तीसरी बुक लिखी गई है योर बेस्ट डे इज टूडे। योर बेस्ट डे इज टूडे। जुगल हंसराज द्वारा एक बुक लिखी गई द कॉवर्ड एंड द स्वॉर्ड। द कॉवर्ड एंड द स्वॉर्ड। एक बुक लिखी गई हिटमैन बुक विजय लोकापाली और जी कृष्णन द्वारा। विजय लोकापाली द्वारा बुक लिखी गई है द हिटमैन। किन्ना दी लाइफ स्टोरी के उत्ते? रोहित शर्मा, क्रिकेटर रोहित शर्मा की लाइफ स्टोरी के उत्ते इस बुक नूं लिखिया गया। नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी इन्हां द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई मेले भुजेको गांधी। यह कह सकते हैं द गांधी एज आई अंडरस्टूड इन नेपाली लैंग्वेज। महात्मा गांधी के उत्ते एक बुक रिलीज़ की नेपाली लैंग्वेज दे विच। रमेश पोखरियाल निशांक एजुकेशन मिनिस्टर ने, इन्हां द्वारा भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवयुग का अभिनंदन इस बुक नूं रिलीज़ किया गया। रस्किन बॉन्ड एक ऐसे पर्सन जिन्होंने तकरीबन 100 तो ज़्यादा किताबां लिख चुके हैं। इन्हां द्वारा एक होर बुक लिखी गई है हाउ टू बी अ राइटर। ठीक है, इन्होंने एक अवार्ड भी दिता गया, हुणे आपां डिस्कस करांगे। अवार्ड्स दे विच सब तो पहले असम नूं GI टैग दिता गया तेजपुर लीची दे लई असम नूं GI टैग दिता गया। तमिलनाडु द्वारा फर्स्ट प्लेस हासिल की गई है बेस्ट स्टेट कैटेगरी दे विच अंडर सैकेंड एडिशन ऑफ नैशनल वाटर अवार्ड 2019। नैशनल वाटर अवार्ड 2019 दे सैकेंड एडिशन दे विच बेस्ट स्टेट कैटेगरी के लिए अवार्ड दिते हैं तमिलनाडु द्वारा। जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस किए गए हैं और दिता गया वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा। इसी तरीके नाल महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा और राजस्थान इस कैटेगरी के विच तीसरे नंबर पर रहे। केरला टूरिज्म द्वारा वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंडन अवार्ड। केरला टूरिज्म द्वारा ही वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंडन अवार्ड जितया गया। महाराष्ट्र गौरमेंट की गल करते हैं तो भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर अवार्ड। भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर अवार्ड सुनील शेट्टी नूं दिता गया। सुनील शेट्टी नूं अवार्ड दिता गया भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर अवार्ड। रस्किन बॉन्ड जिन्हां दे आपां हुणे गल करके हटे सी, इन्हां नूं टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रस्किन बॉन्ड नूं दिता गया। एस हरीश की गल करते हैं JCB प्राइज़ 2020 फॉर लिटरेचर किन्हां नूं जित्तिया? एस हरीश मुस्टैच बुक के लिए। इन्हां दी मुस्टैच बुक के लिए इंपोर्टेंट होंदा JCB प्राइज़ क्योंकि सब तो ज़्यादा प्राइज़ मनी होंदी है इस दे विच 25 लाख। लिटरेचर अवार्ड दे विच इंडिया के लिटरेचर अवार्ड दे विच सब तो ज़्यादा प्राइज़ मनी है 25 लाख रुपए JCB प्राइज़। इस करके ये इंपोर्टेंट होंदा सब तो ज़्यादा। इस तो इलावा सरस्वती सम्मान याद रखने, ठीक है, साहित्य अकैडमी अवार्ड याद रखने, ये अवार्ड याद रखने जरूरी बनने। नेक्स्ट है अरहम ओम तलसानिया। 6 साल का एक बच्चा है अरहम ओम तलसानिया, अहमदाबाद गुजरात तो बिलोंग करता है। इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय बिकमिंग यंगेस्ट पर्सन टू क्लियर द पावरफुल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जाम। एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जाम है, इसनू क्लीयर किया है, यंगेस्ट पर्सन बने, सिर्फ 6 साल की उम्र के इसने इस एग्जाम नू क्लीयर किया है। और 7 साल के बच्चे का रिकॉर्ड तोड़िया मोहम्मद हमजा शहजाद। नेक्स्ट है विद्या बालन नू नटखट मूवी दे लई नटखट मूवी दे लई विद्या बालन नू नहीं कह सकते, मूवी नू कह सकते हैं कि मूवी ने फर्स्ट प्राइज़ जिते है किस दे विच 3rd एडिशन ऑफ बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल दे विच अवार्ड जिते है नटखट मूवी ने। इस मूवी दे विच विद्या बालन एज ए एक्टर और प्रोड्यूसर भी ने इस मूवी दे, और इस मूवी नू डायरैक्ट किया गया शान व्यास द्वारा।
करखना सांची वारी, करखनी सांची वारी, ये भी एक मूवी है, मराठी मूवी है। एशिज ऑफ ए रोड ट्रिप, एशिज ऑफ अ रोड ट्रिप, यह मूवी ओनली इंडियन एंट्री बनी है, ओनली इंडियन एंट्री बनी है टोक्यो फिल्म फैसटीवल दे विच, टोक्यो फिल्म फैसटीवल दे विच, जिसनों डायरैक्ट किया गया मंगेश जोशी द्वारा, मंगेश जोशी द्वारा। लॉकडाउन, लॉकडाउन वर्ड ऑफ द ईयर बनया कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा, कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा लॉकडाउन वर्ड नूं वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया, वर्ड ऑफ द ईयर लॉकडाउन कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा। लाख्ता सेंटर, लाख्ता सेंटर जो कि रशिया दी और यूरोप दी सब तो लंबी बिल्डिंग है, सब तो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, 1515 फुट लंबी है ये। इसनूं सेंट पीटर्सबर्ग दे विच है, जिहड़ी कि रशिया दे सेंट पीटर्सबर्ग दे विच है। अवार्ड दिता गया एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड, एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड किसनूं दिता गया? रशिया दी बिल्डिंग लाखा सेंटर, लख्ता सेंटर, लख्ता सेंटर नूं। नैक्सट है इंपोर्टेंट डेज, इंपोर्टेंट डेज दे विच आपां डिस्कस कीते सी। सब तो पहले 7 नवंबर नूं नैशनल कैंसर अवेयरनेस डे, नैशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑबजर्व किया गया। 8 नवंबर नूं वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ऑबजर्व किया गया। 7 नवंबर नूं ही वन रैंक वन पेंशन स्कीम, वन रैंक वन पेंशन स्कीम ने अपने 5 साल पूरे किए सी। इसनूं 2015 दे विच शुरू किया गया सी ताकि जिहड़े आर्मड फोर्सिस पर्सनल ने, आर्मड ऑफिसर्स ने अपने, उन्होंने दी पेंशन है जिहड़ी ओह एक यूनीफॉर्म पेंशन प्रोवाइड की जा सके। और इस स्कीम की गल करते हैं, स्कीम दे विच यूपी और पंजाब ऐसी 2 स्टेट्स ने जिहड़ी सब तो ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनीफिशरीज ने। 9 नवंबर नूं गल करते हैं तो नैशनल लीगल सर्विसिज डे, नैशनल लीगल सर्विसिज डे ऑबजर्व किया गया 9 नवंबर नूं। 10 नवंबर नूं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर नूं ऑबजर्व किया गया। थीम रही साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। 11 नवंबर की गल करते हैं नैशनल एजुकेशन डे, नैशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर नूं ऑबजर्व किया गया एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर। 12 नवंबर वर्ल्ड निमोनिया डे ऑबजर्व किया गया, वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर नूं, और 12 नवंबर नूं ही पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भी ऑबजर्व किया गया टू कमैमोरेट द फर्स्ट एंड लास्ट विजिट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की पहली और आखिरी विजिट ऑल इंडिया रेडियो के 1947 के हुई सी। इस दिन नूं कमैमोरेट करने के लिए पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ऑबजर्व किया जाता है। नैक्सट चलते हैं अपॉइंटमेंट्स दे वल, अपॉइंटमेंट डिस्कस करांगे तो ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम, ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम इन्हों प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया हॉकी इंडिया का, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम मणिपुर तो बिलोंग करते हैं। 2009 के विच बनाया गया सी हॉकी इंडिया और न्यू दिल्ली के विच इसका हैडकुआटर है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के विचों पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने ने ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। ए के गुप्ता MDN CEO अपॉइंट किए गए हैं ONGC विदेश के, ONGC ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश के MDN CEO AK गुप्ता। ONGC 1965 के विच बनाया गया सी, मुंबई के विच हैडकुआटर है। विदिशा मैत्रा, विदिशा मैत्रा नूं यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी के विच इलैक्ट किया गया है, कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस, यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी नेशंस क्वेश्चंस दे विच अपॉइंट किया गया, इलैक्ट किया गया विदिशा मैत्रा नूं। इंडियन ने अपने लिए इस करके नाम इंपोर्टेंट बनेगा। MM कुट्टी नूं चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के चेयरपर्सन NCR रीजन के लिए 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं MM कुट्टी। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन इन्होंने अनाउंस किया कि अपनी पोस्ट को क्विट करनगे, छड्डणगे अगले साल तो ड्यू टू हैल्थ रीजनस। हैशीम ताची
ਹਾਸ਼ਿਮ ਟਾਚੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕੋਸੋਵਾ ਦੇ, ਕੋਜ਼ੋਵਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਜ਼ੋਵਾ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮਿਚੇਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ, MCC ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਟਰਨ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਚੇਲ ਹੋਲਡਿੰਗ। ਜੋ ਬਿਡਨ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਬਿਡਨ 46th ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ USA ਦੇ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ USA ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਵੂਮਨ ਔਰ ਫਰਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਵੂਮਨ ਬਣੇ ਨੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ USA। ਵਿਵੇਕ ਮੂਰਤੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ COVID-19 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੁਆਰਾ 12 ਮੈਂਬਰ COVID-19 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੈੱਡ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਲੀਆ ਜ਼ਫਰ ਫਰਸਟ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਫਰਸਟ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਆਲੀਆ ਜ਼ਫਰ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ MD CEO ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਗੈਸ ਇੰਪੋਰਟਰ ਕੰਪਨੀ ਪੈਟਰੋਨੈਟ LNG, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੈਸ ਇੰਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਪੈਟਰੋਨੈਟ LNG ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ MD ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ। ਬਹਿਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਬਹਿਰੇਨ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, 1970 ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਰੇਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਿਰੇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਦਿਨਾਰ ਚੱਲਦੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IPL 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ IPL ਜਿੱਤਿਆ 5ਵੀਂ ਵਾਰ। IPL ਦਾ 13ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡ੍ਰੀਮ 11 ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ 8 ਟੀਮਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। KL ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। KL ਰਾਹੁਲ ਕਿੰਗਸ 11 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਫॉर ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਿਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਪਲ ਕੈਪ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਨਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਬਣੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਟੀਮ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੈਨਮੈਂਗ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਵੂਮੈਨ ਨੰਬਰ 1 ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੋਜ਼ੇਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ IPL ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਟੀਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ IPL ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਟੀਮਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ IPL ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ऋतुजा भोंसले द्वारा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टाइटल जितया गया। इंडियन ने इंपॉर्टेंट बनेगा अपना नाम बाय डिफीटिंग एना सिस्कोवा जो कि क्रेच रिपब्लिक तो बिलोंग करते हैं, इन्हों हरा के जिते। इजिप्ट के हैल्ड किया गया सी। ठीक है जी। इजिप्ट कैपिटल की है कायरो, याद रखनी। डैनियल मैदवदीव रशिया तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जितया पैरिस मास्टर्स किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करता है, टैनिस तो बिलोंग करता है। मैन सिंगल टाइटल जितया डैनियल मैदवदीव रशिया द्वारा और अलेक्जेंडर जेवरेव नूं हरा के जो कि जर्मनी तो बिलोंग करते हैं। ट्रायल ब्लेजर्स टीम ऑफ स्मृति
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਲੇਜ਼ਰਸ ਟੀਮ ਨੇ ਵੂਮੈਨਸ T20 ਚੈਲੰਜ ਜਿੱਤਿਆ। ਵੂਮੈਨਸ T20 ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ? ਦੁਬਈ UAE ਨੂੰ। ਦੁਬਈ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਟੀਮ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 3 ਟੀਮਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 4 ਮੈਚਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਲੇਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ। ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ। ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ ਆਫ ਸੁਪਰਨੋਵਾ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।